friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Shrivastava. Friend, today we are discuss important question of English pedagogy and passage. Okay फ्रेंड्स, इंग्लिश पेडागोजी में हम लोग पहले पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग फिर पेडागोजी को के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. डायरेक्शन है कि 121 to 128 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो. ओके पहले हम लोग पैसेज पढ़ते हैं फ्रेंड कि वॉचिंग इज़ मेडिटेशन, व्हाट यू वॉच इज इररिलेवेंट. You can watch the trees, you can watch the river, you can watch the cloud, okay, and you can watch the children playing around. Watching is meditation. What you watch is not the point, the object is not the point, the quality of observation, the quality of being aware and alert. That what meditation is. Remember one thing, meditation means awareness. Okay, meditation means awareness. Whatever you do with awareness is meditation. Action is not of importance but the quality that you bring to your action. Walking can be a meditation if you walk alert. Sitting can be a meditation if you sit alert. Listening to the bird can be meditation if you listen with awareness. Just listening to the inner voice of your mind can be meditation if you remain alert and watchful. The whole point is one should not move in sleep. The whatever you do in is meditation. Okay, the whatever you do is meditation. आगे देखते हैं फ्रेंड. आगे है इसमें द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस इज टू बी ए वेरी वॉचफुल ऑफ योर बॉडी. स्लोली वन बिकम्स अलर्ट अबाउट ईच गेस्चर, each moment, and as you become aware a miracle start happening. Many things that you used to do before simply disappear. Your body becomes more relaxed, your body becomes more attuned. A deep peace start prevailing even in your body. Okay, a subtle music pulsates in your body. The same has to be done with thoughts. They are more subtle than the body and of course more dangerous too. And when you become aware of your thought, you will be surprised what goes no inside you. If you write down whatever is going on at any moment, you are in for a great surprise. You will not believe that this is what is going on inside you, and after 10 minutes read it, you will see a midnight inside. Because we are not aware, this whole madness goes on running like an undercurrent. If affected whatever you are doing, if it affected everything, and the sum total of is going to be your life. So the madness has to be changed. And the miracle of awareness is that you need not do anything except just become aware. The very phenomena of watching it changes it. Slowly the madman disappear. Slowly the thought start falling into a certain pattern. Their choice is no more. They becomes more of cosmos, and then again a deeper peace prevails. And when your body and your mind are at peace, you will see that they are attuned to each other too. Now they are not running in different direction, they are not riding different horses. For the first time there is accord, and that accord help immensely to work on the third step, that is becoming aware on your feeling, emotion, moods. This is the subtlest layer and the most difficult. But if you can be aware of the thought, then it is just one step more. A little more intense awareness is needed, and you start reflecting your mood, your emotion, your feeling. Okay, अब हम आएंगे फ्रेंड क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या है? अ मैड माइंड में बी डिस्कवर्ड. ओके, तो ए ओनली इज इन एबनॉर्मल पीपुल. तो ओनली जो है फ्रेंड ये निगेटिव टैग वर्ड है. ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. बी क्या है? इवन इन इंटेलिजेंट पीपुल. एंड सी है ओनली इन पीपुल हु आर मेडिटेटिंग. तो फिर ओनली आ गया, ये भी निगेटिव है. इवन इन इंटेलिजेंट पीपुल, ये भी निगेटिव है.
A mad mind may be discovered in people who are aware of themselves. मतलब फ्रेंड इसमें दिया है कि the quality of observation, the quality of being aware. Okay, the quality of observation, the quality of being aware and alert. That what is meditation is, remember one, meditation means awareness. Okay, so whatever you do with awareness is meditation. तो करेक्ट आंसर इज होगा इसमें कि a mad mind may be discovered in people who are aware of themselves. Okay, करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. इफ यू राइट डाउन whatsoever is going on at any moment, you are in for a great surprise. Identify the clause in the underlined part of the sentence given above. तो ए है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, बी है एडजेक्टिव क्लॉज, सी है नाउन क्लॉज एंड डी है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. तो if you write down whatsoever is going on at any moment, you are in for a great surprise. Identify the clause in the underlined part of the sentence given above the adverb clause of condition. Right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट अल्टीमेट अवेयरनेस. ए है इसमें कैन बी अचीव बाय प्रैक्टिस, बी है इज नॉट डूइंग बट समथिंग हैपनिंग ऑटोमेटिकली एंड सी है कैन बी टॉट ओनली बाय अ गुरु एंड डी है कैन बी अचीव ओनली थ्रू ट्रूथफुल. तो ओनली तो निगेटिव है फ्रेंड, ये कट इज नॉट भी निगेटिव है, ये भी कट. आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी रिफर्ड इन फियर दैट अल्टीमेट अवेयरनेस इज कैन बी अचीव बाई प्रैक्टिस. मतलब आप मेडिटेशन करके आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस करके आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसमें. आगे देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन राइट ऑर्डर. इसको राइट ऑर्डर में करना है. फर्स्ट है अवेयरनेस ऑफ मूड्स, सेकंड है अवेयरनेस ऑफ थॉट, थर्ड है अवेयरनेस ऑफ पीस बिटवीन माइंड एंड बॉडी एंड फोर्थ है अवेयरनेस ऑफ बॉडी. ओके, तो इसको अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेप इन राइट ऑर्डर. तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें अवेयरनेस ऑफ बॉडी, उसके बाद होगा फ्रेंड अवेयरनेस ऑफ थॉट. पहले हम अपने बॉडी को अवेयर करते हैं, उसके बाद मेरे बॉडी फिर हम विचार करते हैं. ओके, उसके बाद थर्ड है इसमें अवेयर ऑफ पीस बिटवीन माइंड एंड बॉडी. फिर हम अपने मस्तिष्क को और अपने बॉडी को पीस मतलब शांति के थ्रू अवेयर करते हैं. ओके, फिर अवेयरनेस ऑफ मूड, फिर अवेयरनेस ऑफ मूड आएगा. तो पहले अवेयर ऑफ द बॉडी, देन अवेयर ऑफ द थॉट, फिर अवेयर ऑफ पीस बिटवीन माइंड एंड बॉडी एंड देन अवेयर ऑफ मूड. ओके, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मस्ट यू डू इफ़ योर बॉडी इज़ वेरी टेंस. फर्स्ट है ए है रन ए मील, सेकेंड है इसमें गेट इन्वॉल्व इन अ विगोरियस एक्सरसाइज, सी है जस्ट वॉच योर बॉडी एज अ फर्स्ट स्टेप एंड डी है जस्ट वॉच योर माइंड. तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मस्ट यू डू इफ़ योर बॉडी इज़ वेरी टेंस. तो फर्स्ट है इसमें run a mile and get involved in a vigorous exercise. Okay, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. ए है मैड माइंड कैन बी क्रूड, करेक्ट एंड सब ये करेक्ट है. एंड सब बी है इट इज़ इम्पॉसिबल टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ विदाउट बीइंग मेडिटेटिव, ये भी करेक्ट है. तो फर्स्ट एंड ए एंड बी बोथ आर राइट. ओके, तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द फ्रेज मूव इन स्लीप इन पैरा फर्स्ट मीन्स फर्स्ट है ए वॉक वाइल अस्लीप, बीइंग है बीइंग अवेयरनेस एंड सी है बीइंग अलर्ट एंड डी है लिसनिंग टू योर माइंड. तो पैरा फर्स्ट में दिया है कि मूव इन स्लीप का मीन्स क्या होता है, बी अवेयर. ओके, मतलब होता है बी अवेयर. तो इसका मतलब क्या होगा, बीइंग अनअवेयर. ओके, बीइंग अनअवेयर. द फ्रेज मूव इन स्लीप इन पैरा फर्स्ट मीन्स वॉकिंग वाइल्स अस्लीप, बीइंग अनअवेयर, बीइंग अलर्ट, लिसनिंग टू योर माइंड. राइट आंसर इज बी, बीइंग अनअवेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू सबस्टेबल एज यूज इन अ सुटेबल म्यूजिक प्लास्टेड इन योर बॉडी. ए है नाइस, बी है
प्रेसाइज, सी है फाइन एंड डी है क्रूड। तो राइट आंसर इज क्रूड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड डायरेक्शन। अब आते हैं 129 टू 135। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम वंस गिवन। ओके, तो आगे देखते हैं फ्रेंड इसमें क्या है, पैसेज है। पैसेज पढ़ेंगे हम लोग पहले कि इट इज़ फ्रिक्वेंटली एज्यूम दैट दी mechanicians of work has a revolutionary effect on the lives of the people who operate the new machines and on the society into which the machines have been introduced. For example, it has been suggested that the employment of women in industry took them out of the household, their traditional sphere, and fundamentally altered their position in society. Okay, in the 19th century, when women became to enter factories, Julius Simon and French politician warned that by doing so, women would give up their femininity. Friedrich Engels, however, predicted that women would be liberated from the social, legal, and economic subordination of the family by technologically development that made possible the requirement of the whole female folk into public industry. Observed thus deferred considering the social disability of mechanization effect, but they agreed that if would transform women lives. Okay, तो इसमें क्या दिया है फ्रेंड, आगे भी देख लेते हैं कि हिस्टोरियंस पार्टिकुलरली those investigating the history of women now seriously question this assumption of transforming power. They conclude that such dramatic technological innovations as the spinning jenny, the sewing machine, the typewriter, and the vacuum cleaner have not resulted in equally dramatic social change in women economic position or in a prevailing evolution of women work. The employment of young women in textile mills during the industrial revolution was largely an extension of an older pattern of employment of young single women as domestic. It was not the change in office technology but rather the separation of secretarial work. Okay, the increase in the number of married women employed outside the home in the 20th century had less to do with the mechanization of housework and an increase in leisure time for these women than it did with their own economic necessity and with high marriage rate that shark the available pool of single women workers. Previously, in many cases, the only woman employee would hire. Okay, अब हम आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, before the industrial revolution, the majority of women's work was done in which of the following settings? A है textile mills, B है private household, C है offices and D है factories. Okay, तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड इसमें कि अभी हम लोग इसमें पढ़े हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो क्या है, उसमें जो है उसमें आएगा प्राइवेट हाउस होल्ड. ओके, प्राइवेट हाउस होल्ड. तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द मेजोरिटी ऑफ वुमेन वर्क वाज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग? टेक्सटाइल मिल्स, प्राइवेट हाउस होल्ड, ऑफिसेस एंड फैक्ट्री. तो इसमें आएगा प्राइवेट हाउस होल्ड. ओके, तो राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. The author mentions all the following innovations as example of dramatic technology innovation. Expert दी. A है इसमें स्विमिंग मशीन, B है वैक्यूम क्लीनर, C है टाइपराइटर एंड D है टेलीफोन. तो एक्सेप्ट जो होता है वो दी आथर मेंशन ऑल दी फॉलोइंग इन्वेंशन एज एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक टेक्नोलॉजी इन्वेंशन एक्सेप्ट दी. इसमें दिया वैक्यूम क्लीनर. ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज अबाउट द 20th century मेनी एम्प्लॉइज. तो अकॉर्डिंग टू द राइटर 20th century एम्प्लॉई जो है मेनी एम्प्लॉई टेंडेड टू एम्प्लॉइज में दिया है टेंडेड टू एम्प्लॉई सिंगल रैदर देन मैरिड वुमेन. ओके, तो इसमें कहाँ है? ए है डिड नॉट एम्प्लॉई वुमेन इन फैक्ट्री, बी है टेंडेड टू एम्प्लॉई सिंगल रैदर देन मैरिड वुमेन एंड सी है एम्प्लॉयड वुमेन इन ओनली दोज जॉब्स दैट वेयर रिलेटेड टू वुमेन ट्रेडिशनली हाउस होल्ड वर्क एंड डी है हायर्ड वुमेन ओनली व्हेन क्वालिफाइड मैन वेयर नॉट अवेलेबल टू फिल द ओपन पोजीशन. तो
according to the passage, before the 20th century many employees tended to employ single rather than married women. Sorry friends. तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग वुमेन इन टेक्सटाइल मिल्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज लार्जली एन इंटेंशंस ऑफ एन ओल्डर पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो अंडरलाइन पार्ट ए है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, बी है नाउन क्लॉज, सी एडवर्ब क्लॉज एंड डी एडजेक्टिव क्लॉज. राइट आंसर इज बी नाउन क्लॉज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इज मीनिंग इन इनोवेशन एज यूज इन द पैसेज. तो इनोवेशन जो हो जाएगा, ए है टर्मिनेशन, बी है मैकनिजिएशन एंड सी है ट्रेडिशन एंड डी है स्टेनेशन. तो राइट आंसर इज बी मैकनिजिएशन. ओके. राइट आंसर इज बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following words is opposite in meaning to the liberated as used in the passage. Liberated जो होता है उसका opposite meaning जो है, A है इसमें released, B है rescued एंड C है confirmed एंड D है saved. राइट आंसर इज C हो जाएगा फ्रेंड, confirmed. ओके. आगे देखते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. ए है इसमें बिफोर द 20th सेंचुरी मेनी एम्प्लॉई रेस्टेंटेड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस दैट वुड रेडिकली चेंज वुमेन रोल इन द फैमिली. ये ए इज़ राइट. बी क्या है? बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वुमेन वेयर एम्प्लॉयड ओनली एज डोमेस्टिक्स. बी इज़ राइट. ए एंड बी आर ट्रू. ओके. तो ए एंड बी आर इसमें बी ट्रू है. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा. आगे देखते हैं. गिवन बिलो टू स्टेटमेंट मार्क एज असर्शन ए एंड रीजन आर. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें. अब हम लोग आएंगे पैडागोजी पे. तो ए है इसमें असर्शन. ए कहता है लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल ऑफ इन्फ्लुएंस अदर्स. ए इज राइट. यस कि लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल ऑफ इन्फ्लुएंस अदर्स. ओके. एंड लैंग्वेज कैन बी यूज एज ए वीपन टू विन पब्लिक सपोर्ट. ये आर इज राइट, ट्रू. ओके. तो लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल ऑफ इन्फ्लुएंस अदर एंड लैंग्वेज कैन बी यूज एज अ वीपन टू विन पब्लिक सपोर्ट. बट आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए एंड आर are true and R is the correct explanation of the A. Right answer is B हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. A situation in which two dialect of language are used by single language community is referred to as. A है accents, B है registers, C है diglossia and D है idiomatic. राइट आंसर इज C diglossia. ओके. आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Children engaging in cooperative dialogue with more mature peers or adults, they take language of these dialogues, make it part of their own speech and use it organize their independent effort in the same way is referred to as A है make believe play, B है language acquisition device, C है centration and D है zone of proximal development. Okay. तो children engaging in cooperative dialogue with more major peers adult आ गया फ्रेंड. तो ले वाइगोस्की का है. ओके. peers adult मतलब जो होता है एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसमें दे टेक लैंग्वेज ऑफ दीज डायलॉग, मेक इट पार्ट ऑफ देयर ओन स्पीच and use its organize their independent effort in the same it is added to zone of proximal development यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र. राइट आंसर इज डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव. ए है ग्रामर, बी है वोकाबुलरी, सी है प्रोनाउंसिएशन एंड डी है रीडिंग कम्प्रीहेंशन. राइट आंसर इज सी प्रोनाउंसिएशन. ओके. आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ड्यूरिंग अ राइटिंग टास्क अ टीचर मेक्स द स्टूडेंट सिट इन पेयर्स एंड आस्क्स देम टू ऑफर फॉर्मेटिव feedback to their peers on their writing which further help them to improve the draft. This strategy may be referred to as help them as improve their draft. This strategy may be referred to as a reciprocal teaching, peer review, mind mapping, brainstorming. तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, peer review. ओके. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन द चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सिग्निफायर्स सच एज साउंड एंड गेस्चर टू रेफर्स टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट. दिस इज रेफर टू एज. ए है स्पाइरल अवेयरनेस, बी है सिम्बॉलिक थॉट, सी है मेंटल मैप एंड डी है ऑब्जेक्ट
permanence. So, according to Jean Piaget, during the early stage of language acquisition, the children start using signifiers such as sound and gesture to refer to concrete object. तो is ये symbolic thought? Right answer is B. Next question देखेंगे. Read the following statement about dialect and accent and choose the correct option. A है dialect related to the actual language. Use and accent refer to the way that language is spoken and इनकरेक्ट है. ओके. बी क्या है? डायलैक्ट रेफर टू कोलोकियल वर्ड एंड फ्रेज दैट ऑफन रिफ्लेक्ट आइडेंटिफाई एंड असेंस रेफर टू दी टेक्निकल वोकैबुलरी टू हेल्प पीपुल आर्टिकुलेट एक्सपीरियंसेस इवेंट एंड कॉन्सेप्ट इन स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो ये भी गलत है. तो ए एंड बी आर ट्रू. ए इज़ इनकरेक्ट एंड बी इज़ करेक्ट. ओके, इसमें बी करेक्ट है कि डायलेक्ट रेफर टू कोलोकियल वर्ड्स एंड फ्रेज दैट ऑफन रिफ्लेक्ट आइडेंटिफाई दी असेंस रेफर टू दी टेक्निकल वोकैबुलरी टू हेल्प पीपुल आर्टिकुलेट एक्सपीरियंस इवेंट एंड कॉन्सेप्ट इन स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट. ओके, बी इज़ करेक्ट. राइट आंसर इज बी हो जाएगा. फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैंग्वेज स्किल? ए है स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल. बी है रीडिंग एंड लिसनिंग आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल. सी है स्पीकिंग इज रिस्पेक्टिव बट लिसनिंग इज प्रोडक्टिव skills. And D है reading is productive but writing is respective skills. So which of the following statement is true of language skill? Speaking and writing are productive skill. Okay, speaking and writing are productive skill. There are two type of skills. Okay, productive skills and respective skill. Reading and listening are respective skills and स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स. ओके, तो इसमें जो ट्रू है वो है स्पीकिंग और राइटिंग आर जो है प्रोडक्टिव स्किल्स. ओके, तो ये राइट है. और सेकंड क्या है? रीडिंग एंड लिसनिंग आर प्रोडक्टिव स्किल. तो रॉन्ग. स्पीकिंग इज रिस्पेक्टिव बट लिसनिंग इज प्रोडक्टिव स्किल. ये भी रॉन्ग है. ये दोनों रॉन्ग है. तो राइट आंसर इज स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स एंड लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिस्पेक्टिव स्किल. ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा. फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द टाइप ऑफ वोकैबुलरी दैट लर्नर्स नोज व्हाट डज नॉट यूज ऑफन इज एक्टिव वोकैबुलरी, बेसिक वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, स्पीकिंग वोकैबुलरी. राइट आंसर इज सी, पैसिव वोकैबुलरी. देयर आर टू टाइप ऑफ वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी एंड पैसिव वोकैबुलरी. एक्टिव वोकैबुलरी इज reading and writing and passive vocabulary is listening and speaking. Okay, तो करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटजी? ए है लिंग्विस्टिक वेरिएशन ऑफ द क्लास इज रिस्पेक्टेड. बी है टीचर मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स. सी है मे लैंग्वेज आर टॉट इन स्कूल्स. एंड डी है डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एंड कंसीडर एज अ रिसोर्स फॉर ए लैंग्वेज टीचिंग. तो इसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ लैंग्वेज स्ट्रेटजी. तो इसमें लिंग्विस्टिक वेरिएशन ऑफ द क्लास इज रिस्पेक्टेड. टीचर मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ द लर्नर. मे लैंग्वेज are taught in school is not correct. Okay, तो right answer is C है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फ्रेंड अ टीचर बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज ए सोशल कंट्रास्ट एंड हर आइडिया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट. तो लैंग्वेज इज ए सोशल कंट्रास्ट. तो ए है जीन पियाजे, बी है लेव वाइगोस्की, सी है जेरोम ब्रूनर एंड डी है नॉम चॉम्स्की. तो लैंग्वेज इज ए सोशल कंट्रास्ट. सोशल थ्योरी जो दिया है, सोशल कल्चरल थ्योरी इज लेव वाइगोस्की. ओके, तो सोशल जो आ गया तो लैंग्वेज इज ए सोशल कंट्रास्ट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की. ओके, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Communicative language teaching can be understood as a method in which a teacher A है make use of real life situation which require communication. B है gives various opportunity to learners to construct their language. C है practice various grammar rules with learners to help them in language learning. And D है gives text in mother tongue and asks them to translate in target language. So communicative language teaching can be understood as a method in which a teacher is make use of real life situation which require communication. A is correct answer. Okay, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर रीड्स फॉर
there are two type of reading, extensive reading and intensive reading. Okay, extensive reading जो पूछा है तो ए है इसमें answering the question based on the reading text, बी है getting the gist of the text, and सी है getting specific information, and डी है pleasure. तो extensive reading is the type of reading in which the reader reads for his pleasure. Okay, right answer is D. Next question देखेंगे friend, which of the following is not true for formative assessment in language learning? There are two type of assessment, formative assessment and summative assessment. Okay, तो पूछा इज नॉट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग. ए है इट इज़ डन टू मेक जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. बी है इट इज़ डायग्नोस्टिक्स. सी है इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग remediations to the learner with respect to their language learning, and डी है it can be done through various activities and at various intervals. So which of the following is not true of for formative assessment in language learning? It is done to make judgment about the student learning and performance. Okay, right answer is A हो जाएगा. आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो पूछा है नॉट ट्रू पूछा है, तो इट इज डायग्नोस्टिक्स ये तो करेक्ट है. It help in providing limitation to the learner with respect to their language learning. It can be done through various activities at and various intervals, but it is done to make judgment about the student learning and performance is not true. Okay, right answer is A हो जाएगा. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्ट्रेटजी फॉर प्री राइटिंग ड्यूरिंग प्रोसेस राइटिंग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्ट्रेटजी फॉर प्री राइटिंग ड्यूरिंग प्रोसेस राइटिंग. ए है माइंड मैपिंग, बी है ब्रेन स्टॉर्मिंग, सी है फ्री राइटिंग, एंड डी है पीयर रिव्यू. तो राइट आंसर इज ए माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग बी है स्ट्रेटजी फॉर प्री राइटिंग ड्यूरिंग प्रोसेस राइटिंग. ओके, करेक्ट आंसर इज ए. थैंक यू फ्रेंड्स.